Okay, students, we had to start our discussion from this slide, right? Revision, what we have done is up till here. We had discussed in last class how the neuromuscular junction is formed. We had seen about the role of presynaptic membrane, postsynaptic, mitochondria, vesicles, right? All the significance of these things we had seen in our last class. Now some more new things, let us revise again. Terminologies में जो पहली बात है resting membrane potential. Resting membrane potential क्या होता है? Electric potential when the muscle is in resting condition is called resting membrane potential. Okay, and in human skeleton muscle, the value of resting membrane potential is around -90 millivolt. And why negative? What is the reason for negative sign? रीजन फॉर नेगेटिव साइन क्या है? चंचल, यस मैम। ये नेगेटिव साइन क्यों रहता है इसमें? व्हाई डू वी हैव अ नेगेटिव साइन? मैम व्हेन द मसल इज इन रेस्टिंग हाँ, it is in resting condition. What is the reason for minus sign? मैम मे आई? Yes, who is it? मैम गुंजन भाटी। हाँ बोलो। मैम क्योंकि जो सोडियम का एक्युमुलेशन होता है वो आउटसाइड दी सेल वो Yes, ज्यादा हो tell. जाता है। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हाँ, मैम, इसका आंसर ये है कि जो सोडियम आयंस होते हैं वो आउटसाइड द सेल बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है उनका देन द पोटेशियम से। जब अंदर इनसाइड द सेल पोटेशियम का जो एक्युमुलेशन होगा ना वो कम होगा और सोडियम का ज्यादा होगा आउटसाइड द सेल, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। हेलो हाँ, correct. We had discussed this. If you remember, we had discussed this. Full applied physiology part also was there in your textbook. That time also we had discussed the reason for it. ठीक है? Then action potential क्या है? When a muscle is stimulated, electrical changes occur, right? Which are collectively called action potential. Clear? When a muscle gets stimulated, electrical changes occur in the muscle and it is carried forward. Action potential. Students, you are able to see the slide? यस मैम। मैम Okay. So now we have come again to a very important part. This is not only important exam point of view, even for you to understand pharmacology next year.
and also to understand various disease conditions related to neurology, related to muscular system. You need to know about these conditions. Okay, so neuromuscular transmission. What is neuromuscular transmission? And transfer the information from motor nerve ending to the muscle fiber through neuromuscular junction. Transfer of information from motor nerve ending to the muscle, इसलिए न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन करके कह रहे हैं. एंड एट व्हाट प्लेस इट टेक्स प्लेस? It takes place at the Neuromuscular junction. During this process, yes, it is taking place at the neuromuscular junction. ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या है हमें समझ में आ गया. न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ? from motor nerve ending to the muscle fiber. Motor nerve ending to muscle and through neuromuscular junction. So before we go further, we have to see one thing, that the structure has to be understood. Again, ये एक्सॉन है, ये प्री सिनेप्टिक एरिया है, ये वेसिकल्स, यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट. और यहाँ पे ये पोस्ट सिनेप्टिक फोल्ड्स आर देयर. पोस्ट सिनेप्टिक फोल्ड्स पे आपको ये जो दिख रहा है ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, राइट. These are the major structures that we need to know. So इसमें मोटर नर्व फाइबर कौन सा है स्टूडेंट्स? Where is the motor nerve fiber? बोलो. मैम रिलीज साइड, जस्ट जहाँ पर रिलीज साइड से मैम. इसमें मोटर नर्व कौन सा? ये है, ये है. नो मैम, ये नहीं है, ऊपर वाला है. हाँ, दिस इज द मोटर Yes, ma'am. नर्व फाइबर. ठीक है, मोटर नर्व फाइबर में दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल. उस फाइबर का एक्सॉन ये है और ये है एक्सॉन टर्मिनल, राइट. ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पे है. सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द मसल फाइबर. मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके थ्रू वी विल बी डिस्कसिंग. मोटर नर्व फाइबर आ रहा है ऊपर से, एक्सॉन टर्मिनल ये रहा, बीच में जो स्पेस है वो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं वो है, और मसल फाइबर यहाँ. ठीक है. Now let's see the flow chart that is given in your textbook also.
न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहला क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल. व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? Now don't answer. I am going to ask roll number wise. Otherwise, some of them will go into gehri nidra. Okay. कोई जल्दी नहीं है, फुर्सत है, अच्छे से रिवीजन करेंगे. Let's start from roll number 16 onwards. Half class. 16. Jatin Anand. What is action potential? Adarsh is there? Yes, ma'am. हाँ, coordinate करो. Jatin Anand. Where is he? Ma'am, he is present but not responding. Ask him to respond. Jatin Anand. Next roll number. Julie. Yes, ma'am. Ma'am, when the muscle is stimulated, electrical changes occur which are collectively called action potential. Good reading. Explain what it means. हम जब मसल स्टिमुलेट होता है अकर इलेक्ट्रिकल चेंजेस उसको उस टोटल चीज का नाम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. मसल स्टिमुलेट होता है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी ऑन होते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. कैन यू गिव वन एग्जांपल? Jatin can give an example. Jatin. Julie's explanation is okay. I want to know further the example for it. Next, Kanika. Ma'am, she is not present, ma'am. She is not present. Okay. Apurva Yadav.
जैसे कि किसी हॉट सरफेस पे हाथ टच होने से पहले जब मैम हमें लगता है कि हाँ ये हॉट है, तो हम वहां से हाथ हटा लेते हैं। हाँ, तो वहां पर हीट जो है वो क्या है? हीट वहां पर क्या है उस मसल के लिए? मैम स्टिमुलेशन। मैम एक्शन। एक्शन। मैडम एक्शन। नो। हीट एक्शन। वहां पर क्या है? एक्शन। मैम स्टिमुलस। इलेक्ट्रिकल। मैम Stimulus. Okay, it is the stimulus. Okay, let us see now what happens. Action potential फिर से चाहिए तो definition देख लो. When a muscle is stimulated, electrical changes occur, which are collectively called action potential. ठीक है, तो stimulated means it can be any stimulus. It can be electrical, it can be pain, it can be heat. Different stimulus can be there, right? तो यहाँ पर हमने ये समझा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद में what happens at the axon terminal? Opening of voltage gated calcium channels. ठीक है, and next is entry of calcium ions from extracellular fluid. So opening of voltage gated calcium channels occur, और उसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम आयंस जो हैं they start moving into the axon terminals, and this promotes opening of these vesicles. ये vesicles open हो जाते हैं and these vesicles release. What do they release? Madhu? Madhu. यस मैम। What do they release? एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलिन. वेरी गुड. ठीक है, तो ये सीक्वेंस है कि यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे कोई स्टिमुलस हुआ, वो उस मोटर नर्व फाइबर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई, वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो खुल गए, कैल्शियम अंदर की तरफ, वेसिकल्स ओपन होना और एसिटाइलकोलिन रिलीज होना. ठीक है, इतनी एक्टिविटीज एक्सोन टर्मिनल में हो गई. एसिटाइलकोलिन कहाँ को रिलीज हो जाती है? वेयर डू दे गेट रिलीज? माही अरोरा. Ma'am, my is not present, ma'am. मुर्तुजाली. Ma'am, he is also not. नेहा रजोरा. Ma'am, not present. निधि मौर्य. Yes, ma'am. Yes, ma'am, she is present. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, वेसिकल्स ओपन होके एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? यहाँ को जाएगा. Synaptic cleft. हाँ, goes into the synaptic cleft. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन विथ निकोटिनिक रिसेप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इज देयर, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट्स आर देयर. यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, दैट बाइंड्स विथ इट, एंड व्हाट डज इट फॉर्म? पलक राजपूत.
She is absent. Parnam Chaudhary. Pooja Yadav. Samsi. Yes, ma'am. कौन है अभी? पूजा है, परनाम है? Yes, ma'am. हाँ बताओ। एसेटाइल कोलिन रिलीज हो गया, यहाँ पर रिसेप्टर्स में आके जुड़ के क्या फॉर्म करेगा? Postsynaptic membrane. ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा ये। हाँ, Sodium chat. आई थिंक आई शुड कीप माई वीडियो ऑन, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्कैर्ड, है ना? कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले Ma'am, जा रहे हो। acetylene too. Now from this I will come inside also to catch you all. So it won't take much time. I'll come inside and catch it if you all say funny things. I have the technique to do that. हाँ, tell me. ये एसेटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ मिलकर क्या फॉर्म करता है? Ma'am, sodium channels. Binding of acetylcholine with the nicotinic receptors and formation of Acetylene choline. एसेटाइलिन कोलिन नहीं, एसेटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज somebody has Entry kept second mic something, it is giving feedback. Somebody is using two devices, keep one device closed. Okay, opening of sodium channels, then entry of sodium ions from extracellular fluid, which will lead to, what will it lead to? Development of end plate potential. Okay, and then next is generation of action potential, right? This would lead to generation of action potential and excitation contraction coupling. If you remember, we had a separate discussion on excitation contraction coupling. We will see that also. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ जो शुरू हुई है एक स्टिमुलस, ठीक है, एक स्टिमुलस सपोज यहाँ पे शुरू हुआ है, what has it led to? It has led to opening of voltage channels in this, which channel? What? Pooja Yadav, which channel? Pooja Yadav. Yes, ma'am. हाँ, अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ, बताओ कौन सा चैनल खुलता है यहाँ पे? जब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल है और पर क्या होता है? Ma'am, contraction. पूजा यादव, Yes, ma'am. आंसर? Ma'am, sodium channels. सोडियम चैनल यहाँ Yes, पर ma'am. Hello. हाँ, हेलो, 1 2 माइक मैं चेक। आए
पूजा यादव बताओ क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्या है? मेरा हाइलाइटर कहाँ पे है? मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ और ये इट लीड्स टू ओपनिंग मैम ऑफ शो विच शो चैनल? नहीं हो रहा शो नहीं हो रहा है, है। स्लाइड शो नहीं हो रहा है। स्लाइड शो हो रही है मैम, वो नहीं हो रहा है हाइलाइटर। हाइलाइटर नहीं दिख रहा है। वो मैम अभी दिख रहा है, मैम दिख रहा है। हाँ बोलो, इधर कौन सा चैनल ओपन होता है? मैम ऐसी टैलेंट खोली। मैम मैं आए। ये कौन है? मैं आई कौन है? Who is it? मैम Pardon? Anyone, may I or anyone, somebody answer the question. I'll go into shock now. कैल्शियम हमको चैनल। कैल्शियम चैनल जाएंगे कैल्शियम यहाँ पे। चैनल है ना, कैल्शियम चैनल ओपन्स। यहाँ पे कैल्शियम एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसको हमने देखा था ना, इफ यू रिमेम्बर हमने ये देखा था, राइट? वी हैड सीन दिस कैल्शियम चैनल्स, रिमेम्बरिंग? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। ये कैल्शियम चैनल से ये कैल्शियम अंदर की तरफ आया, राइट? ये कैल्शियम अंदर की तरफ आने से हु गेट्स एक्टिवेटेड? कैल्शियम जब अंदर की तरफ आ जाता है, हु गेट्स एक्टिवेटेड? एग्जाम टर्मिनल। The vesicles, no? And then we had seen in this diagram also ki the vesicles are moving like this and they are docking themselves here, or फिर this leads to release of the neurotransmitter, right? कैल्शियम चैनल से, कैल्शियम चैनल का ओपन होना, कैल्शियम्स का अंदर ECF से अंदर की तरफ आना, एंड ये जो वेसिकल है यहाँ पे ऐसे जो घूम रहा है वेसिकल, इट गोज एंड डॉक्स इटसेल्फ एट द मेम्ब्रेन हियर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के एंड में, एंड यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, ठीक है? हाँ, where are we? We had reached here. It comes at this part, synaptic cleft. Synaptic cleft में आने के बाद में it combines with acetylcholine receptors to form, yeah, मैम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। acetylcholine receptor complex, ठीक है? अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है? सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, ठीक है? सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ आता है। इस मूवमेंट के टाइम क्या जनरेट होता है? एंड प्लेट पोटेंशियल। This leads to generation of action potential, and then we had seen excitation, contraction, coupling होता है, and finally muscle contraction. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। Excitation, contraction, coupling. Next, इसका भी फ्लो चार्ट आपके बुक्स में दिया हुआ है, राइट? यस मैम। बताओ। नेक्स्ट है प्रिया सिसोदिया।
By now, I should have given Yes, you ma'am. topics. You all have to prepare PowerPoints and you all have to present in the revision classes. अभी भी मैं पहले लेक्चर की तरह लेते जा रही हूँ. हाँ? I need participation from your side. Now, students, this is all already taught. Yes. Yes, ma'am. प्रिया ससोदिया, Yes, ma'am. बताओ इसके बारे में एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. यस मैम, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में कैसा प्रोसेस है जिसमें जो भी मसल्स होती है उसमें एक्साइटेशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन होता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. मैम इसमें सब फर्स्ट स्टेप है वो मैम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. व्हेन एवर द मसल्स इज स्टिमुलेटेड देन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड. देन जो एक्शन पोटेंशियल है मैम वो सार्कोलेमा के थ्रू स्प्रेड होता है. सार्कोलेमा एंड टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू स्प्रेड होता है. एंड देन एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो अराइव होता है कहाँ पे, सिस्टर्ने ऑफ एल ट्यूब्यूल्स में. मैम ये सब हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारे पार्ट्स हमने डिस्कशन किए थे. फिर मैम क्या होता है यहाँ पे कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं सिस्टर्ने से इनटू दी सार्कोप्लाज्म. देन मैम जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट मैम थिन फिलामेंट भी होता है. और एक्टिन फिलामेंट क्या होता है मैम, स्लाइड करता है ओवर द मायोसिन फिलामेंट. देन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. Okay. So, to review over this, if you remember, we had seen also, I think it was not in this. Right, this was the diagram we had seen. I think I'll take a copy of it only there. You all have to explain. I'm only taking the old photographs, old diagrams, and you have to explain what is the whole thing all about. बताओ अभी नेक्स्ट कौन है? रजनी. रजनी, Ma'am says not present, ma'am. सारिका, सहज, Ma'am both are not present. शैली,
Ma'am, cell is also not present. Shivani. Yes, ma'am, she is there. शिवानी यादव. यस मैम. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए डायग्राम्स भी सब ला के दे दिए यहाँ पर. आपको मुझे बस समझाना है, ये जो लिखा है ये डायग्राम में, हालांकि मैं ही बोलती रहूंगी साथ साथ में, बट स्टिल आपको समझाना है क्या होता है. फर्स्ट इज मैम स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय इम्पल्स. okay, first thing that is happening is stimulation of muscle fiber by an impulse. What could be the impulse? Ma'am, touching of hot surface. So it can be heat, then what एक्शन else? पोटेंशियल जनरेट होगा. मैं अभी क्या पूछ रही हूँ, फिर से वीडियो ऑन करके अंदर आ जाऊँ मैं वहां पे. मैं अभी पूछ रही हूँ कि स्टिमुलस क्या क्या होगा. इमीडिएटली यू विल थ्रो वन आंसर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. मेरा क्वेश्चन है स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय इम्पल्स, क्या क्या इम्पल्सेस हो सकते हैं. हॉट सरफेस पे टच करना, किसी क्या कहते हैं शार्प चीज, मतलब चीज पे हैंड का टच होना. ओके, सो पेन, हीट, व्हाट एल्स, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, गलती से जाके कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट टच कर लिया, कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल आपके बॉडी पे गिरा, स्किन पे गिरा, तो सच थिंग्स ऑल आर कॉल्ड द वेरियस स्टिमुलाई. अब वो जब जनरेट हो गया तो योर फेवरेट वर्ड हैज कम, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल. ठीक है, क्लियर. यस मैम. ओके, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ऐसा नहीं है ना एक फाइबर पे केवल रहेगा, राइट. इट विल नॉट रिमेन जस्ट ऑन वन फाइबर ना, कि बस यहाँ पे एक पे आ गया, एक पे आ गया, वैसा रहेगा नहीं. इट स्प्रेड्स थ्रू सार्कोलेमा, राइट. इट स्प्रेड्स थ्रू सार्कोलेमा, ये दिख रहा है आपको सार्कोलेमा. इट स्प्रेड्स थ्रू सार्कोलेमा एंड व्हाट एल्स, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स. हाँ, ट्यूब्यूल्स स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ ये इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, और इसके दोनों तरफ भी कुछ और है. व्हाट इज इट, यहाँ भी मैम एल ट्यूब्यूल. एल टेब्यूल. So, arrival of action potential at cistern of L tubule. ठीक है, अब ऐसे होने के बाद में क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सिस्टर्न इनटू द सार्कोप्लाज्म. ठीक है, कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड इनटू द सार्कोप्लाज्म. तो वो एक हमने देख लिया. अब ऐसे में नेक्स्ट क्या होता है, सी हियर वी हैड सीन वेयर आर दीज फॉर्म. ये ट्रायड कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये ट्रायड बिटवीन आई बैंड एंड ए बैंड. जंक्शन ऑफ आई बैंड एंड ए बैंड. हाँ, ये एरिया में है. तो अब हमको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट होता है तो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड रहता है, वो सार्कोलेमा के थ्रू टी टिब्यूल की तरफ जाता है, एल टिब्यूल की तरफ जाता है. फाइनली कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड इनटू द
सार्कोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सार्कोप्लाज्म भी आपको लेबल्ड दिख रहा है, फाइन। एंड ये पूरी इधर एक्टिवेट कर देता है इसको, और ये कहाँ पर है, आई बैंड और ए बैंड के जंक्शन के यहाँ पे इसका सोर्स। नाउ लेट्स सी फर्दर, यहाँ पर in this diagram how will you relate what has been told? यहाँ पे these thick ones, what are they? Thick filaments are मायोसिन फिलामेंट, thick ones are the myosin filament, फिलामेंट, and the thin ones एक्टिन फिलामेंट, actin filaments, right? तो ये हमको समझ में आ गया। तो अब वापस हम यहाँ पे जाते हैं, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो अब डायग्राम में हमें वापस देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, रिलैक्स्ड स्टेट में कुछ नहीं है, रिलैक्स स्टेट में ये एक्टिन अपनी जगह पर है, मायोसिन अपनी जगह पर है, बट जब कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो एक्टिन मूव्स ओवर, स्लाइड्स ओवर। ये देखो, जब ये एक्टिन, यहाँ पे आपको जो गैप दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, यस मैम, हाँ, तो दिस एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन। तो देखो गैप खत्म हो गया, राइट? यस And what has happened to this part of the muscle? कॉन्ट्रैक्शन, Contracted, है ना, या muscle contraction हो गया है। Okay, this is the whole phenomena we were talking about. हमने ये डायग्राम में भी देखा था यहाँ पर। हालांकि आपको डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अगर स्टेप वाइज देखोगे तो इट इज सिंपल। ये देखो, ये नर्व इम्पल्स आया है, राइट? नर्व इम्पल्स अराइव्स एट एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ ACH या एसिटाइलकोलिन, द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज हमने देखा, ये देखो एसिटाइलकोलिन अब वेसिकल्स में से आके यहाँ से रिलीज हो गया है। Acetylcholine diffuses across the synaptic cleft, binds to its receptor in the motor end plate and triggers a muscle action potential, ठीक है। So that is also done. Next, acetylcholinesterase in synaptic cleft destroy acetylcholine, so another muscle action potential does not arise unless more ACH is released from motor neuron, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझना है कि एक ने तो यहाँ पर आकर रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ गए हैं और it has led to muscle action potential. At the same time ये गैप में क्या आ जाएगा? What will come in these gaps? This is already present, acetylcholine is already present. Who will come in these gaps? Synaptic cleft में क्या present होता है students? कौन सा एंजाइम? एसिटाइलकोलिन विद एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन What it will do, whatever extra acetylcholine is there, वो उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है। Now let's see further. So this is also over. Third step. Fourth, muscle action potential traveling along transverse tubule, open calcium release channels in the sarcoplasmic reticulum membrane, which allows calcium ions to flood into the sarcoplasm, ठीक है। तो ये जो बात कही गई है ये हमने अभी अभी डायग्राम में यहाँ पे देखा था, ये कि ये यहाँ से आके टी ट्यूब्यूल और फिर यहाँ से आके एल ट्यूब्यूल, एंड एक अचानक
जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, कैल्शियम आयंस को है अंदर आने के लिए, फ्लड होने के लिए रीजन बन जाता है। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जब बढ़ जाते हैं व्हाट हैपेंस, दिस इज आल्सो ओवर, लेट्स सी फिफ्थ वन। कैल्शियम बाइंड्स टू troponin on the thin filament, exposing the binding sites of myosin. Okay, this we had seen through with the help of a YouTube video also, if you remember, you can go through that again. ठीक है, तो यहाँ पर मेन हमको क्या समझना है, ये जो कैल्शियम है ये जाकर ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ जाता है, एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन। क्लियर? अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ये रहा, यहाँ पे ये जो कैल्शियम आयंस हैं या कैसे ऐसे जुड़ रहे हैं, राइट? नाउ इसके वजह से क्या हो गया, एलिवेटेड कैल्शियम। फिर नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, power stroke. Remember power stroke, use ATP, myosin head bind to actin, है ना? myosin जो head है it binds to actin, swivel and release thin filaments are pulled toward the center of sarcomere. इस तरीके से स्लाइड होते हैं, एक पावर स्ट्रोक होता है, और जो आपके जो थिन फिलामेंट्स हैं ये सेंटर की तरफ, अभी यहाँ पे गैप देखो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है। whereas in this you see जो पावर स्ट्रोक हुआ है उसके वजह से what has happened, it has come and it has come till here. ठीक है, are pulled towards the center of the sarcomere. This is also over. Next, calcium release channels in the sarcoplasmic reticulum close and calcium ions active transport pumps use ATP to restore low levels of calcium ions in the sarcoplasm. Now calcium active transport pumps, what it will do finally, troponin tropomyosin complex slides back into the position where it blocks the myosin binding sites on actin, and what will it lead to, ये जो है वापस आ जाएगा और ये मसल्स जो रिलैक्स हो जाएंगी। Now I don't know whether don't have much time, but I don't remember if ये हमने डिटेल्ड वो देखा था, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन का किस तरीके से पावर स्ट्रोक होता है, राइट? दिस वी हैड सीन इन दिस डायग्राम. This YouTube link also was given, so you all can watch it on this YouTube link also. We'll not go further, only we'll review this part. Action potential, voltage gated calcium ions open हो जाते हैं, entry of calcium ions from extracellular fluid, then vesicles open होकर acetylcholine को रिलीज करते हैं, acetylcholine पास होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आता है, वहाँ पर वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट सोडियम जो चैनल्स हैं वो ओपन अप हो जाता है यहाँ पे,
सोडियम आयंस जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, which leads to a development of end plate potential, also we can call muscle action potential, है ना। अब मसल एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाता है, it has traveled into it, then what happens is excitation contraction coupling, ठीक है, excitation contraction coupling. So we had seen एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में और क्या होता है, how the impulse is stimulated and it leads to release of calcium, है ना, that is released into the sarcoplasm, and then we saw the calciums are released, then the sliding filament theory, elevated calcium होने की वजह से the actin slides over myosin and it comes towards the sarcomere. Okay, so this much we'll wind up today. नेक्स्ट क्लास सबसे एक बार ये पूछकर ही मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन हर कोई मुझे एक्सप्लेन करेंगे,